Hello, good morning, students. Let us start with lesson number 31 today. In this lesson, we are going to learn what is meant by internal resistance of a cell and the factors on which the internal resistance of a cell depends. The second, we are going to see what is the relationship between the EMF of a cell and the potential difference across the terminals of the cell during the charging and the discharging case. The third question we are going to see is to find the internal resistance of a cell by plotting VI graph for it. So let us begin with the first question. The first question is internal resistance of a cell. It is normally represented by small r. I hope everyone knows that in a cell you have two electrodes and in between them there is a chemical that we call as electrolyte. So when a current has to flow through the cell, the electrolyte of the cell offers some opposition to the flow of current. ये जो opposition है offered by the cell to the flow of current through it, उस resistance को we call as internal resistance. In a very simple way, internal resistance is the resistance offered by a cell to the flow of current through it. Now we have a look at the factors on which the internal resistance of a cell depends. The first one depends on the concentration of the electrolyte. The second is the nature of the electrolyte. Then the third is it is directly proportional to the distance between the two electrodes and inversely proportional to the cross-sectional area of the electrodes. Apart from these four factors, the fifth factor is it is inversely proportional to temperature. In simple way, it means as the temperature is going to rise, the internal resistance of the cell will decrease. So we are asked a small 1-mark question in the exam. Why it is easier to start a car engine on a warm day as compared to a chilly day? You see, on a warm day, temperature will rise. When the temperature rises, the internal resistance of the cell will decrease. When the resistance will decrease, then the ability of the cell to provide current will become large. And large current can easily start the car engine. So that's why it is easier to start a car engine on a warm day. In the next question, we're going to have a look at the EMF and the potential difference across the terminals of a cell. In this diagram, we have shown a cell with EMF E, internal resistance small r, and external resistor capital R. How is EMF of a cell defined? It is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge. कहाँ से? From the positive terminal around the circuit and returning back on the positive terminal of the cell. Let me read it once. It is the work done in moving a unit positive charge from the positive terminal around the circuit and returning back on the positive terminal. May I just inform you students कि जो EMF of a cell है वो एक कांस्टेंट होता है फॉर ए गिवन सेल, उसकी वैल्यू चेंज नहीं करती है. अब जैसे कोई ड्राई सेल है उसकी EMF 1.5 वोल्ट है तो वो 1.5 वोल्ट ही रहेगी EMF, चाहे सेल नया हो या पुराना हो, EMF विल रिमेन कांस्टेंट.
Now we talk about the second term called potential difference. Potential difference across the terminals of the cell has been again defined in the same way as EMF had been defined. What does it say? It states that it is the amount of work done, potential difference is the amount of work done in moving a unit positive charge from the positive terminal around the circuit but returning on the negative terminal. तो ये जरा सा फर्क है. EMF में पॉजिटिव टर्मिनल से घूम के जाते हैं एंड रिटर्न करते हैं ऑन द पॉजिटिव टर्मिनल, और पोटेंशियल डिफरेंस में पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट करते हैं, अराउंड द सर्किट जाते हैं एंड वी एंड एट द नेगेटिव टर्मिनल. थोड़ी देर बाद वी आर जस्ट गोइंग टू सी कि देर इज अनदर वे ऑफ डिफाइनिंग EMF ऑफ ए सेल. देखिए, अगर किसी सेल से हम कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे, आई की वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाए, देन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल वो EMF बन जाता है. तो हम कह सकते हैं कि EMF ऑफ ए सेल हैज़ बिन डिफाइंड एज व्हाट? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट. Let me just read it once. EMF is also defined as what? The potential difference across the terminals of a cell when no current is drawn from it. So let's start with the next question, which is a very, very important question to show that V is equal to E minus of I into R. You had seen this diagram earlier. ये एक cell है, इसकी EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, और ये कनेक्टेड है टू ए रजिस्टर कैपिटल R. अगर करंट I फ्लो करेगा तो यहाँ वोल्टेज हो जाएगी I इंटू R, और ये जो वोल्टेज है विल बी इक्वल टू वोल्टेज ओवर हियर. नाउ वी स्टार्ट. पहले हमने ओम्स लॉ लगाना है और कहना है कि I इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज E डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट स्मॉल r प्लस कैपिटल R. फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो E की वैल्यू विल बी I इंटू स्मॉल r प्लस कैपिटल R. फिर हमने ब्रैकेट खोला, I इंटू स्मॉल r हो गया प्लस I इंटू कैपिटल R हो गया. I इंटू कैपिटल R होता है वोल्टेज, तो ये टर्म वोल्टेज विल बी इक्वल टू E माइनस ऑफ I इंटू R. तो हम लर्न कर रहे हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल, इट इज related to EMF by this formula, E minus of I into R. Now there are two things that we'd like to discuss. जब किसी भी सेल के अंदर से करंट फ्लो करता है फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल, जैसे अब हो रहा है, तो वी से दैट द सेल इज डिस्चार्जिंग. डिस्चार्जिंग के केस में करंट फ्लो करता है फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल इनसाइड द सेल, और फार्मूला होता है वोल्टेज अक्रॉस द सेल व्हाइल इट इज डिस्चार्जिंग इज E माइनस ऑफ I इंटू R. लेकिन अगर हम किसी एक्सटर्नल बैटरी से एक करंट को फ्लो करवाएं ज़बरदस्ती फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, in that case we say that the cell is getting charged. तो during the charging process जो फार्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का वो बन जाता E प्लस ऑफ I इंटू R. तो इफ़ यू आर आस्क्ड क्या ये बात सच है कि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कम होता है देन द EMF ऑफ ए सेल, द आंसर इज नो, क्योंकि ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो EMF से कुछ ज़्यादा हो जाता है. तो ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. V इज इक्वल टू E माइनस ऑफ I इंटू स्मॉल r. द सेकेंड डेरिवेशन इन दिस इज कि शो दैट स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन V. ये पर्टिकुलर फार्मूला एक बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम यूज़ करते हैं. वो पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है जिसमें हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं. सो
स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू ई माइनस वी बाई वी। इसको कैसे शो करना है दैट वी आर सीइंग। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू ई माइनस ऑफ आई इंटू स्मॉल आर होता है। तो i इंटू स्मॉल आर इधर ले आइए तो ये हो जाएगा e माइनस वी, और i इंटू आर होता है v। अब आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए, i विल गेट कैंसल्ड एंड स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू e माइनस वी अपॉन v। तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज e माइनस वी अपॉन v। तो ये जो पर्टिकुलर फार्मूला है ये न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट लग जाता है, तो इसको हमें याद कर लेना चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक सेल दिखाया है ऑफ EMF 4 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम, और उसके क्रॉस एक रजिस्टर कनेक्ट किया है ऑफ 7.5 ओम। इसको हम फर्स्ट केस कहते हैं एंड लेट द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल बी कॉल्ड V1। वही सेम बैटरी with EMF E 4 volt, internal resistance वही 0.5, but now is connected to another resistor जिसकी वैल्यू है 11.5 वोल्ट। मान लिया इस केस में, सेकंड केस में, जो वोल्टेज है अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल वो V2 है। तो इस न्यूमेरिकल में हमें E माइनस V1 डिवाइडेड बाई E माइनस V2 निकालना है। तो स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल रहेगी कि हम पहले दोनों में करंट की वैल्यू निकालें। फर्स्ट केस में करंट की वैल्यू विल बी, वोल्टेज 4 है डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 0.5 प्लस 7.5, और सेकंड केस में करंट की वैल्यू विल बी वोल्टेज 4 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 11.5। तो मतलब I1 और I2 की वैल्यू हमको पता चल गई है। अब हम स्टार्ट करते हैं विद द सिंपल फार्मूला। देखिए कि V इज इक्वल टू E माइनस ऑफ I इंटू आर। तो I इंटू स्मॉल आर विल बी E माइनस V। फर्स्ट केस में ये फार्मूला ट्रांसलेट हो जाएगा एज I1 इंटू स्मॉल आर इंटू E माइनस V1, और सेकेंड केस में ये हो जाएगा E माइनस ऑफ V2। तो I2 इंटू आर इज इक्वल टू E माइनस। तो ये फार्मूला हमने दो बार लगाया है, फर्स्ट केस में और सेकंड केस में, और दोनों को फिर हमने डिवाइड कर दिया है। तो डिवाइड करने से वी गेट I1 बाई I2। I1 और I2 की वैल्यू हमको मिल गई थी पहले, उसको स्टूडेंट सब लगा दीजिए एंड यू विल गेट द रेशियो E माइनस V1 डिवाइडेड बाई E माइनस V2। अब चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में ही सेज कि फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वन सेल। यहाँ पे ही हैज शोन कि दो आइडेंटिकल सेल्स हैं, दोनों की EMF 1.5 वोल्ट है और वोल्टेज भी 1.4 वोल्ट है। ये दोनों सेल्स मिलके अब एक बैटरी बन जाते हैं एंड these cells they provide current to a small circuit जिसमें दो रजिस्टर्स हैं which are connected in parallel like this। तो हम इस सर्किट को ट्रांसलेट कर लेते हैं into a smaller circuit। इन दोनों सेल्स की जगह हम इमेजिन कर लेते हैं कि एक सेल है जिसकी EMF 1.5 वोल्ट है और वोल्टेज भी कितनी है 1.4। लेकिन व्हाट विल हैपन टू द इंटरनल रेजिस्टेंस, जब दो रजिस्टर्स ऑफ इक्वल वैल्यू आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो आंसर होता R/2। इसी तरीके से ये भी इक्वल वैल्यू के हैं तो आंसर होगा 7/2। अब स्टूडेंट्स आप देखें कि हमने अभी एक फार्मूला डिराइव किया था कि स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू E माइनस वी अपॉन V। अब लुक, इस केस में हम एक बैटरी की बात कर रहे हैं जिसमें दो सेल्स थे, तो R सफिक्स B का मतलब क्या है, द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस R/2, और कैपिटल R इक्विवेलेंट क्या है 7/2, वो लगा देते हैं
ई और वी की वैल्यू डाल देते हैं, वहाँ से हम स्मॉल आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस वाज बेस्ड ऑन दैट सिंपल फार्मूला कि स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज ई माइनस वी अपॉन वी। अब स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये एग्जाम में 2 बार पूछा हुआ है। ये है कि टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। हम स्टार्ट करते हैं विद द फार्मूला कि V इज इक्वल टू ई माइनस ऑफ आई इंटू आर। फिर हम इन टर्म्स को रीअरेंज करते हैं, V इज इक्वल टू माइनस आर इंटू आई प्लस ई। ये इक्वेशन देखने से ऐसे लगता है कि इट इज ऑफ द टाइप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मतलब y एक्सिस पे हमें वोल्टेज रखनी चाहिए, x एक्सिस पे हमें करंट रखना चाहिए। तो हमने एक ग्राफ बनाया बिटवीन द वोल्टेज वर्सेस करंट। अब आप देखें, अगर हम इस इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में I की वैल्यू को अगर 0 लगा दें तो क्या होगा? V विल बिकम इक्वल टू E। अगर I 0 यहाँ पे है तो V विल बिकम इक्वल टू E। तो ये जो Y इंटरसेप्ट होता है VI ग्राफ का, ये हमें EMF ऑफ द सेल बताता है। अगर हम इसी इक्वेशन में V की वैल्यू को 0 लगा दें तो क्या होगा? V अगर 0 है तो I विल बिकम इक्वल टू E डिवाइडेड बाई स्मॉल r। तो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा। तो ये एक लीनियर इक्वेशन थी, इसलिए जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। एंड वी आर लर्निंग कि ये जो x इंटरसेप्ट है ये हमको करंट देगा, और करंट की वैल्यू है E डिवाइडेड बाई स्मॉल r। अब इस इक्वेशन को देखें हम तो ये पता चलता है कि जो स्लोप ऑफ द ग्राफ है वो रिप्रेजेंट कर रहा किसको? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल को। तो स्टूडेंट्स, टू सम अप दिस क्वेश्चन, हमने 3 बातें हमको याद रखनी हैं कि अगर VI ग्राफ है तो Y इंटरसेप्ट हमको क्या देता है? EMF ऑफ द सेल। X इंटरसेप्ट क्या देता है? करंट की वैल्यू देता है, E डिवाइडेड बाई स्मॉल r। और जो लाइन है उसका स्लोप गिव्स द वैल्यू ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस इन मैग्नीट्यूड। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन सेज कि 4 आइडेंटिकल सेल्स हैं, हर एक की EMF E है, हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, and they are connected like this. So they form a battery. So let us ask ourselves, what is the EMF of this battery? Because they are helping each other, तो सारी EMF ऐड हो जाएंगी, वो हो जाएगा 4 times of E। और जो रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी होगा वो होगा 4 times of स्मॉल r। तो क्वेश्चन सेज कि इस बैटरी के लिए एक VI ग्राफ बनाया है। ह्यूबल से जानते हैं स्ट्रेट लाइन होगी। क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द EMF ऑफ ईच सेल एंड व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, दैट इज द क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम नोट करते हैं कि जो Y एक्सिस पे इंटरसेप्ट है वो हमें क्या देता है? EMF ऑफ द बैटरी। तो EMF ऑफ द बैटरी इज 5.6, लेकिन EMF of the battery is 4E, तो E की वैल्यू will be 5.6 divided by 4। जो X इंटरसेप्ट होता है वो करंट देता है, और उसका फार्मूला क्या है? E अपॉन R। कौन सा E? EMF of the battery। कौन सा रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। सो EMF of the battery is 5.6, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 4R। यहाँ से हम R की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमें बहुत ध्यान रखना है कि VI ग्राफ में ये क्या देता है? EMF, और ये क्या देता है? करंट, और स्लोप विल गिव द इंटरनल रेजिस्टेंस।
In this question, he says show the variation of EMF versus resistor capital R and the variation of voltage potential difference across capital R versus capital R. Students, आपको याद होगा when we talked about EMF of the cell, तो हमने कहा कि वो एक कांस्टेंट होता है फॉर ए गिवन सेल. मतलब ये हुआ कि आप कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल ले लें या ज़्यादा ले लें, ई की वैल्यू विल रिमेन कांस्टेंट. दैट इज व्हाट इज इंडिकेटेड बाय दिस ग्राफ. अब हम सीखने वाले हैं हाउ टू शो द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस कैपिटल आर अक्रॉस द सेल. तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं कि कैपिटल आई द करंट विल बी ई डिवाइडेड बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, और जो वोल्टेज होता है वो आई इंटू आर होता है. तो आई की वैल्यू यहाँ लगा देते हैं ई अपॉन स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर. अब हमने क्या किया कि डिनोमिनेटर में से कैपिटल आर कॉमन ले लिया, मतलब इसको डिवाइड कर दिया बाई आर, इसको भी, तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस 1 हो गया और ये आर और आर कैंसिल हो गए. मतलब वोल्टेज का फार्मूला आ गया ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर. अब हम इस फार्मूले की मदद से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ये वोल्टेज किस तरीके से वेरी करेगी विद रेजिस्टेंस. अब थोड़ी देर के लिए देखें, अगर मैं आर की वैल्यू को, कैपिटल आर की वैल्यू को ज़ीरो लगा दूं, आर की वैल्यू को ज़ीरो लगा दूं, तो ए नंबर डिवाइडेड बाय ज़ीरो विल बिकम infinity, and 1 plus infinity will remain infinity, and a number divided by infinity will become, फिर से देख लीजिए, अगर मैं r की वैल्यू को ज़ीरो करता हूं तो ए नंबर डिवाइडेड बाय ज़ीरो विल बिकम infinity, and 1 plus infinity will remain infinity, and e divided by infinity will become what? 0. तो v की वैल्यू विल टर्न आउट टू बी 0. कब? when r की वैल्यू इज 0. फर्दर, अगर हम कैपिटल R की वैल्यू को इन्फिनिटी डाल दें तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, एंड 1 प्लस 0 विल रिमेन 1, एंड v की वैल्यू विल बिकम e. तो हम लर्न कर रहे हैं कि अगर r की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है तब ही जाके v विल बिकम इक्वल टू e. मतलब ये ग्राफ इस तरीके से होगा. इस ग्राफ से हम ये लर्न कर रहे हैं रीजनिंग क्वेश्चंस के लिए कि जैसे जैसे इस रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे ये वोल्टेज क्या करती है? इंक्रीज होती है. तो आगे रीजनिंग क्वेश्चंस में ये बड़ा काम आएगा. तो अपार्ट फ्रॉम द मैथमेटिक्स दैट इज देयर इन इट, आप कम से कम ये याद कर लें कि अगर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते चले जाएंगे तो जो वोल्टेज है अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल वो भी बढ़ती चली जाएगी. लेट अस नाउ स्टार्ट विद द अदर क्वेश्चन. ये सिंपल है काफ़ी. ही सेज एक सेल है विद EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r. पहले केस में दो रजिस्टर सीरीज में लगाए हैं. दूसरे केस में वही सेल है लेकिन दो रजिस्टर्स को R1 एंड R2 को पैरेलल में लगाया है. ही इज आस्किंग कि किस केस में जो वोल्टेज है अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी विल बी ग्रेटर. स्टूडेंट्स, अभी आपने सुना था कि जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ती है वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल भी इंक्रीज होता है. तो ये एक कॉमन बात है कि जब रजिस्टर्स को सीरीज में लगाते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है यहाँ पे वो बढ़ जाता है, और जब पैरेलल में लगाते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है. तो इसका मीनिंग ये हुआ क्योंकि फर्स्ट केस में ये रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है इसलिए यहाँ पे जो वोल्टेज है वो भी इंक्रीज होगी. तो वोल्टेज across the terminals of the cell in case 1 will be more than the voltage across the terminals of the cell in case 2. So that was all for today. Thank you very much.